बस मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today our topic is demographic consideration education planning, right? So what is demographic? Demographic क्या चीज होती है? Population, right? Demo and graphic. Population. Now, the basic role of education and particularly education planning and administrator is to plan for their upcoming generations, right? So it's mean demography mean number of people in a specific place at a specific time, right? Demographic, there is a big difference between demographic and population. Demographic mean a number of people at a specific place at a specific time, right? This is called demographic, right? Demography pertains to two things. One is at a particular time and a particular place, right? And demography is continuously changing with the passage of time and with the passage of place. Okay, demography is continuously change. Even if you are sitting in classroom, you observe that in a 5 minute, and even in 5 minutes, the demography is class change. One student go, maybe one student come, right? Teacher go, teacher come, right? So demography pertains to the number of population at a specific time at a specific place, right? So when you are going to conduct planning, you should keep in mind the demographic situation of that particular place and a particular time. Okay, so let's see. So socioeconomic characteristics of a population expressed statistically, like age, sex, educational level, income level, material status, occupation, religion, birth rate, death rate, average size of a family, average size
average age of marriage. These all characteristics of any population is known as demography, right? So population and demographics is the further a particular detail at a specific time. Okay. So it's mean the education planners have a close relationship with demographic situation, right? A close relationship with demographic situation. So आपको थोड़ा सा महसूस हुआ, you should differentiate between population and demography. Whenever you are going to plan something, these all things are very important in the context of population, right? किस एज ग्रुप के लिए आप प्लानिंग करने जा रहे हैं, राइट? एज ग्रुप का ताल्लुक होगा लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर आप 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जा रहे हैं तो यकीनन कॉलेज के होंगे, लेकिन अगर 4 से 5 साल के बच्चों के लिए है तो प्राइमरी होगा। फिर इस पॉपुलेशन में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, राइट? जिस जगह पर, जिस स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक एरिया में यू आर गोइंग टू कंडक्ट एनी प्लानिंग और मैनेजमेंट, और मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि प्लानिंग का पहला स्टेप है डायग्नोसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। diagnosis of existing situation in order to determine the existing problem. Whenever we succeed to identify exact, appropriate and accurate problem, thereafter we will be able to set our targets in shape of objective. Guys, अब आप काइंडली ये जो सीरीज है ना, इसको एक दफा समझ लें तो ताकि आपकी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट? मैंने दोबारा अर्ज की, पॉपुलेशन का हमने एनालिसिस करना है। एनालिसिस में डेमोग्राफी की आज देख लें, कॉन्टेक्स्ट डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है। यू आर गोइंग टू कंडक्ट प्लानिंग, तो प्लानिंग्स के कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन का एनालिसिस करना है। अब जब आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, यू आर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के लिए तालीम की करनी है ना प्लानिंग, बच्चों के लिए करनी है, तो किस एज के बच्चों के लिए करनी है, कब करनी है, फिर इस एज में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, राइट? देखिए, इस दो चीजों में आपकी प्लानिंग के कितने हैं। अगर मेल ज्यादा है तो इसका मतलब है आपको मेल के कॉलेज स्कूल चाहिए। देन ट्रेंड देखना है मेल बच्चों का स्कूल में और फीमेल बच्चों का। ट्रेंड देखना है ड्रॉप आउट रेशोस का। ट्रेंड देखना है कितने लोग नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होते हैं। ट्रेंड देखना है कितने लोग स्कूल को क्विट कर देते हैं प्राइमरी में, राइट? यानी इवन अ सिंगल माइन्यूट डिटेल के लिए भी ना अपनी इन दो चीजों पर कितनी आपकी होगी। किस एज का ग्रुप है,
किस इलाके में है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कों के स्कूल कितने हैं, लड़कियों के स्कूल कितने हैं, ड्रॉप आउट रेशोज कितनी है, एडमिशन की रेशो कितनी है, ड्रॉप आउट के रीजंस क्या हैं, या अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं व्हाट आर द रीजंस, ताकि आप बाकी इलाकों में भी यही प्लानिंग और यही ट्रेंड्स देखें। देन एजुकेशन लेवल ऑफ द पेरेंट्स, ये अभी तलब मैं आपको बताता हूँ हाउ 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 डेथ रेट अफेक्ट्स। बेटा पहले इसको समझ लो, तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। एजुकेशन लेवल ऑफ द पेरेंट्स, एजुकेशन लेवल ऑफ द कम्युनिटी, राइट, जिसके लिए आप ये प्लानिंग करने जा रहे हैं। इनकम लेवल क्या है उस स्पेसिफिक एरिया की, इनकम लेवल ऑफ द स्टेक होल्डर्स, यानी मैंने आपसे कल भी कहा था इकोनॉमिकल कंसिडरेशन में कि पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाया जाए और दे आर विलिंग कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। देखें इस एज में पेरेंट्स के विलिंगनेस बड़ी जरूरी है। अगर पेरेंट मोटिवेट नहीं होंगे तो मेरा सब कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए खुद राजी नहीं होता, राइट। तो एजुकेशन और इनकम लेवल ऑफ पेरेंट, इफ पेरेंट आर वेल्थ गुड है, इकोनॉमिकली इनकी पोजीशन स्ट्रांग है, दे आर मोर विलिंगनेस कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, राइट। फिर वहां पर शादी का ट्रेंड क्या है, राइट। अच्छा अब आप कहेंगे सर इसका हमारे आपके मुआशरे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं ना तो वहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। आपने प्रेसिडेंट क्लिंटन का एक बड़ा जबरदस्त सेंटेंस था, किसी को मालूम है इसके बारे में, तो उसने अमेरिकन के बारे में क्या कहता है, पाकिस्तानी के बारे में, अमेरिकन के बारे में, किसी को मालूम है? President Clinton said, our next generation, we are going to see next generation without wedlock policy. Without wedlock policy. इसका मतलब क्या है, सारे सोचो एंड में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मुराद यह है कि शादीशुदा लोग कितने हैं, कुंवारे लोग कितने हैं, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए, टर्शियरी एजुकेशन के लिए कोई प्लानिंग करनी है। ऑक्यूपेशन क्या है, किस किस्म का ऑक्यूपेशन है लोगों के, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपनी एजुकेशन को भी इस ऑक्यूपेशन के साथ, मैंने आपसे पहले कहा था एजुकेशन इंडस्ट्री को स्किल, प्रोफेशनल, सेमी स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करती है। रिलीजन्स क्या है, ताकि एजुकेशन जो दी जा रही है उनके बिलीफ के मुताबिक कंटेंट, मटेरियल और मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाए। देन बर्थ रेट क्या है, राइट, बर्थ रेट क्या है पर ईयर। अगर हाई बर्थ रेट है तो इट्स प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आप अपनी जो प्लानिंग करेंगे उसमें इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि मैंने आपको कहा था पाकिस्तान की बर्थ रेट क्या है, आपको मालूम है इस वक्त करंट बर्थ रेट क्या है? व्हाट इज द बर्थ रेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की बर्थ रेट इस वक्त कितनी है? हाईएस्ट बर्थ है ईयर। पाकिस्तान की बर्थ रेट इस वक्त 1.9 से लेकर 2.56 तक पर ईयर, राइट, इससे भी ज्यादा है बल्कि पर ईयर। इट्स मीन 3 से 4 साल में हम 1 करोड़ बच्चों को ऐड कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन में, ठीक। फिर डेथ रेट, हमारे यहाँ डेथ रेट भी हाई है, लेकिन देखिए बर्थ माइनस डेथ रेट आपकी एवरेज पॉपुलेशन आती है, राइट, बर्थ माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट 0.9% है। अब
2.5 में से 0.9 निकाल दें तो कितना आपका रह गया, पर ईयर कितना आपका एवरेज पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है, राइट। अब इस तमाम चीजों को रखोगे जब आप पॉपुलेशन और डेमोग्राफी की बात करोगे। फिर एक फैमिली का साइज कितना है, राइट, हाउ मेनी चिल्ड्रन। पाकिस्तान में एवरेज है 5 बच्चे हैं फैमिली के लिए, राइट। अब शहरों में कम हो रहा है ये रुझान, लेकिन एवरेज फैमिली हमारी साइज बड़ा है। फिर किस एज में मैरिज करते हैं, राइट, और पार्टिकुलरली एज ऑफ फीमेल्स। फीमेल की जो होती है ना पैटर्निटी लाइफ, वो होती है 18 to 45 ईयर्स, राइट। तो इसमें कितनी उनकी किस एज, एवरेज एज ऑफ मैरिज मेल और फीमेल की क्या है, ये तमाम चीजें हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं, राइट। सो अ सेंसस इज collection of demographic factor associated with every member of population. हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब देखें एडवर्स इफेक्ट क्या है पॉपुलेशन की, इसकी डेफिनेशन है, फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एजुकेशन इज फॉर द पीपल and its development is ultimately aimed at maximizing the capacity for achieving full welfare of the population. Planner is constantly engaged in activities for and with the people. What are the demographic challenges facing education planner today? It's vital for planner and decision maker to know the structure and distribution of population at a given date, as well as how it has changed in the recent years. In other words, we education planning cannot be divorced from consideration about the dynamics of population, its growth and change, as it deals with target population which is constantly changing. आप एज ए एजुकेशन प्लानर देखें पॉपुलेशन की डायनामिक्स और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बड़ा करीबी ताल्लुक है, राइट। द पॉपुलेशन वेरिएबल इन सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंस है। द adverse effect of rapid population growth on social and economic development are increasingly engage the attention of political leaders all over the world, right? Or particularly in Asian countries, national development plans particularly considered the population policies as necessary for economic action planning, right? So the population issues carry deep-rooted cultures, religious, political considerations. That is why development planner, we, you are planners, would find it difficult to look the socio-economic effect of the population dynamics in isolation, right? हमें populations को सिर्फ population नहीं बल्कि इसको social जिसमें cultural, ethics, languages, costumes और economics effect होते हैं population के. What is needed in development planning is to identify and bring up about that particular rate of population growth, which will in line with the rate at which other basic factor of production can be expanded according to the available level of technology, and leave governments with sufficient funds to perform essential social infrastructure services needs. So it's mean, देखिए हम ये question ये है, question is whether present population growth rate, that is 2 to 3% in countries like Pakistan, are economically and socially desirable. मैं अगर आपको इन्वर्टेड कामाज में कहूं तो क्या ये बैलेंस है?
right? So what is the problem? Where, where is the प्रॉब्लम? ठीक है, अगर हम इस प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपका क्या ख्याल है, सबसे पहली क्या चीज होगी? हम क्यों परेशान हैं? आप बताएंगे प्लानर को क्या मसला भाई? भाई, द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज हैं तो डजंट मैटर. प्लानिंग की जो बेस है ना, जिसे हम कहते हैं कि प्लानिंग, अगर हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हो तो हमें जरूरत नहीं यूटिलाइजेशन इन such a way to get maximum benefit population, increased population, a high growth rate, is shortage of capital. Right? क्या हमारी पॉपुलेशन की स्पीड, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी उसी रेट से बढ़ रहे हैं? राइट? आप गॉट माय पॉइंट. देखें, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की, आपने 10 लाख लोगों की प्लानिंग की. जब प्लानिंग कंप्लीट हुई पता चला बदी 40 लाख है. योर ऑल एफर्ट्स गो इन वेन. You achieve nothing because population consume your all efforts and progress. So certainly such situation is not desirable, right? So increasing population, first challenge, first problem is lack of capital, lack of resources. Our second dilemma is employment. As capital stock cannot be expand easily, development planner are left with alternative improving prevailing level of technology so as to yield more income and production with limited capital stock. और यही crux है. This is the crux. How to utilize your available short available surplus of resources, short resources in such a way to get maximum output. And this is called efficiency. More productive technologies require transition from labor incentive to capital incentive, labor saving modes to production, right? So this dilemma, unemployment dilemma, is that object of raising productivity with powerful imperative to produce employments, right? So to avoid, to curb unemployment,
job have to be created, right, with minimum delay and a massive scale, regardless of whether there is a sufficient capital to maintain satisfactory standards of productivity. So thus, necessity to generate employment on ad hoc contributing to slowing down the acquired structure transformation of the economy of developing countries. So it's mean second thing, the first is resources, the second is unemployment or employment. फिर आपकी सोशल उसमें जो बात सबसे आती है वो आती है आपका डायनामिक्स क्या है पॉपुलेशन के. You as a planner look or seek impact of population dynamics on socio-economic development. So that various social and economic sectors are strongly interdependent. इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है ना. आपकी इकोनॉमी चलो मैं डायनामिक्स आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, failure or neglects of health policies are very likely to lead serious consequences in the field of education or child nutrition. Failure to cope with environment degradation, which may cause excessive immigration, right? Or immigration rural to urban. So all these things adversely affect the health of peoples. Program in the field of housing and public transport are also heavily depend upon these things. So rural health and family planning programs can make little headway, right? So these are few examples how population, for example, if we see population dynamics, जैसे इस बच्ची ने कहा कि जी डायनामिक्स का क्या ताल्लुक होगा तल्लत ने. When we as a planner examine the impact of population dynamics on education development particularly, it is helpful to distinguish between qualitative, quantitative, and equality dimension of the problem. Let's say we say quantitative dimension. The quantitative consequences of the rapid population growth are probably the most obvious one. The economic burden which societies bear by maintaining and expanding education system become heavier as rapid population grow, increase the number of young and economically inactive dependent relative to those who are economically active. अब बात समझ आएगी क्वांटिटेटिव में. आज मैं इंग्लिश ज्यादा पढ़ रहा हूँ ना कि भाई जो न्यू जनरेशन ऐड हो रही है वो तो बेबी है ना, उसको तो अभी 15-16 साल तक हमने फीड करना है, तब वो इस काबिल होगा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा हाथ उठा सके, इकोनॉमी को एक्शन कर सके. उससे पहले तो इस सिस्टम ने उसको फीड करना है. इसने क्या करना है, इस सिस्टम ने इसे फीड करना है. तो क्वांटिटेटिव डायमेंशन, मोर डायरेक्टली, rapid population grow from a paramount obstacle to attaining essential education targets in quantitative realm. Education planner of the early 60s who set desirable targets figure for enrollment ratio, teacher student ratio, general literacy level were not sufficiently aware that they were aiming at moving targets. जब अर्ली 60s के कर रहे थे उस वक्त पॉपुलेशन इतनी स्ट्रांगली इफेक्ट नहीं कर रही थी. ओके, सो विद सम रिजल्ट आर प्रेजेंटेड. आपने देख लिया कि एशियन कंट्रीज में 60 से जाए अभी तक. जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान की 3 करोड़ आबादी थी सारी. आपको मालूम है पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 3 करोड़. आज कितनी है? आज पाकिस्तान की आबादी कितनी है?
चलिए जी, 20-21 करोड़ है, जनरली एक्सेप्टेबल बात है ना। अब मुझे बताएं, 20-22 करोड़ का सबसे पहला एज अ प्लानर 21 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 22 करोड़ हो, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टू फीड सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, राइट? फीड, लैंड उतनी है, या तो 3 करोड़ आबादी के साथ हमारी लैंड भी बढ़ जाती ना, राइट? तो हम कहते हैं कि लैंड और रिसोर्सेज भी ज्यादा हो गए हैं। एक्चुअली हमारे पास रिसोर्सेज तो उतनी है, आबादी ज्यादा हो गई, एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो हाउसेस में चली गई, हाउस स्कीम में चली गई, बिल्डिंग्स बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जमीन स्क्वीज हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, ऐसा ही है ना। तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और इतनी बड़ी आबादी, राइट, तकरीबन 7 गुना ज्यादा आबादी हो गई है, 7 गुना बड़ी आबादी को उतनी ही रिसोर्सेज के साथ हमने मैनेज करना है। दिस इज अ बिग बिग चैलेंज। So the quantitative repercussion of the population pressure on education during this recent few years, in the future, the capacity of countries like Pakistan to finance planned expansion of their education system will largely depend upon their ability to stop this rapid population growth. Otherwise, we are not even able to survive, to feed our upcoming generations. You agree with me as a planner? आप इस चीज से एग्री करते हैं ना? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। वन ये है कि अब हमने मैनेज करना है। आप बता सकते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी जिनकी, कुछ ममालिक ऐसे भी जिनकी आबादी माइनस में जा रही है, प्लस में नहीं है, माइनस में जा रही है, माइनस में। आपको मालूम है दुनिया के कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 0 है, बल्कि इवन माइनस हो गई। ना ना ना, गलत, ड्यू टू लो रिसोर्सेज नहीं है। लो रिसोर्सेज तो पाकिस्तान, एशियन और अफ्रीकन की है, जिनकी आबादी कई सौ गुना ज्यादा हो रही है। ड्यू टू अवेयरनेस, ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ द पीपल। जापान में उन्होंने वर्कर के, जैसे हमारे यहाँ 60 ईयर एज है ना रिटायरमेंट की, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया, राइट? स्विट्जरलैंड हो गए, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। यहाँ पर माइनस में जाने की बजाय उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं किया तो आफ्टर 30 to 40 years these countries have been occupied by the Asians and Africans and Chinese. You got my point? कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल इतना किया कि वो 0 पे चले गए। 0 पॉपुलेशन मीन जितनी बर्थ होती है उतनी डेथ हो रही है, राइट? 0 पॉपुलेशन। हालांकि उन लाइफ हेल्थ की फैसिलिटीज की वजह से उनकी लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, लाइफ स्पैन हमसे बहुत बेहतर है। ड्यू टू अवेयरनेस की वजह से उन लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में चली गई। नाउ देयर एक्सपर्ट्स एडवाइज देम to even maintain a minimum level of population. But in our scenario like Pakistan, it is not even possible to talk it loudly, clearly. There are a number of problems we are facing due to our culture, ethics, and to some extent these religious factors, right? ऐसे ही है ना। मैंने कल भी आपसे कहा था, एजुकेशन इज द सोल weapon, the sole media, the sole resources. First of all, we should try to educate
create awareness among masses how to, what are the problem and how to tackle these problems. This is the biggest challenge in the Asian countries like Pakistan. डेथ रेट आपकी तब कंट्रोल होगी, देखिए डेथ की कुछ रीजंस हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक होकर, ठीक है, चीज को समझने के लिए। आप एक सेकंड के लिए सारी मजहब की चीजें और इन चीजों को साइड पर रखें, हम सिर्फ डेथ को लेते हैं। डेथ होती है कुछ रीजंस की वजह से, डेथ होती है बीमारी की वजह से, ऐसे ही है ना, हादसात की वजह से, ठीक। जब उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को इतना इंप्रूव किया, देखिए आबादी कम है तो हॉस्पिटल्स पे लोड भी कम है, हॉस्पिटल पे लोड भी कम है, डॉक्टर फारिग बैठे होते हैं कि कोई पेशेंट आया हम उसका इलाज करें, राइट। नंबर 2, हेल्दी फूड्स एंड एनवायरनमेंट, हेल्दी फूड्स एंड एनवायरनमेंट्स। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, मैंने सारी वहां पर चीजें खाता था, ना मेरा कभी पेट खराब हुआ, ना मुझे कभी वॉमिटिंग हुई, ना मेरी कभी एसिडिटी ज्यादा हुई। ये है मेयार उनके खाने का। एनवायरमेंट्स आर सो क्लियर कि वहां का टैप का पानी फिल्टर पानी से ज्यादा साफ है, तो आप बीमार कैसे होंगे, राइट। जब आपका लाइफस्टाइल हेल्थी है, योर जॉब इज जॉब नॉट अ प्रेशर कुकर, आप जॉब करते हैं रिलैक्स होकर, बिकॉज योर जॉब इज सिक्योर, योर राइट्स इज सिक्योर, nobody, no honor, no person even ever think about कि वो आपके साथ ज्यादती करे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, चाहे एक लेबर क्यों ना हो, नॉट, नो, उनके रूल्स सख्त हैं। आप समझ गए, जब आप ये तमाम सिस्टम बेहतर होंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आएगा। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हम बच्चों को खुद डिसीजन नहीं करने देते, राइट। हम उनको अपना फैसला खुद नहीं करने देते कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। हर डिसीजन के पीछे हमारी इंटरफेरेंस, मुदाखलत होगी, ओके। तो जब हम बहैसियत कौम नहीं सोचते ना, मैन हैसियत कौम, तो हमारी कौम का हाल भी ऐसा होना है, राइट। उन लोगों ने अपनी कौम के लिए सोचा है, हम अपने लिए सोचते हैं, दिस इज अ डिफरेंस। जब ये डिफरेंस मिनिमाइज हो जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा। ये आपने बड़ी लंबी चौड़ी लिख दिया, लिए बस, ये आपकी सारी बातें ठीक है। देखो मेरी एक बात याद रखना, हम जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे कि दूसरा तुम्हें कभी अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता ना, इसलिए कि उसको इतना मालूम, मैं आप सब कितना फेसेस देख के पूछते हैं। कल एक बच्चे ने पूछा परसों के साथ थीसिस रखूं कि कोर्स करूं, तो मैंने कहा अगर एमए एंड टाइम पे करना है तो कोर्स कर लो, थीसिस का शौक जाके एमफिल पीएचडी में कर लेना, ठीक है। मैंने जो आपको सजेशन दी वो आपको दी ताकि आप अपने कोई सवाल क्यों पूछता था, क्या उसका मकसद था, राइट। तो दूसरी हमारा देखे ना, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, इफ यू आर एग्री विद मी, हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी करीबी हमारे जो रिलेशनशिप है ना, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट मीन एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करते, राइट। हम एक दूसरे के ओपिनियन की वो नहीं करते। ये जो अवेयरनेस, जब एक्शन में तब्दीली होती है ना,
तो इसका जो रिएक्शन आता है वो बड़ा सीवियर होता है। ओके, अब इस तुम बात को समझने की कोशिश कर लो। हम जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इस अवेयरनेस के रिस्पांस में जो इम्प्लीकेशंस आती हैं उसका काउंटर प्रोडक्ट बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तमाम इन मसलों की हमें थोड़ी सी इन डेप्थ सरफेस से जाके नीचे सोचना है, मसलों को कैसे हल करना है। तो पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को जोड़ते हैं कि जनाब रिज़्क अल्लाह देता है, बिल्कुल अल्लाह देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने को प्लानिंग तो करनी है ना अपनी कौम के लिए, राइट? हमने प्लानिंग तो करनी है अपनी कौम के लिए कि नहीं करनी? तो फिर कैसे करेंगे इन रिसोर्सेज के साथ? या तो हम इतने हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज को ले आए ना, हम इन तमाम को कर सके, नहीं है तो फिर हमारे पास क्या दूसरा रिसोर्सेज क्या रहेगा? ओके, अच्छा चलिए हम डिस्कशन भी करते हैं, साथ साथ आगे भी चलते हैं। फिर पॉपुलेशन का एक क्वालिटेटिव डायमेंशन भी है। इन क्वालिटेटिव डायमेंशन में द इन्फ्लेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर थ्रू फास्ट ग्रोइंग increasingly younger population has often left little room for necessary improvement in the qualitative, such as upgrading of the teacher, providing more and better school buildings, introducing modern education technologies. Very little fund remain available for experimental programs, pilot projects designed to test innovative education strategies. Moreover, an addition to education budgets were largely spent in the recruitment of new teachers simply to prevent a deterioration of prevailing student teacher ratio. Qualitatively भी हमने जो हमारे पास आगे हम उनको पढ़ाना है, the problem of school dropout and retardation would also appear to be related to the population pressure resulting quality crisis in education. So it is hard to imagine the enormous additional number in school and university if there were no drop. So the dropout phenomena can be looked at as understandable, right? So the action of the school system to rid themselves of the part of excessive inflow of students. School dropouts are often casualties of unrolled education expansion pushed forward by the rapid population growth. Then another dimension is equality dimension. Pressure of population, apart from its effect on the quantitative and qualitative development, it's curtail the contribution of education toward more socially equality. Experiences shows that program to alleviate educational inequalities between boys and girls, between rural and urban, and between upper and poor societies, segment of the societies tend to be sacrificed first, right? Due to shortage of resources, right? These programs are, in simple words, जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है और आपके पास फंड्स कम है, फिर ये जो आपने करने हैं ना, जो आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, अमीर और गरीब की जो गल्फ है, जो खलीज है, ये और ज्यादा होती जाएगी। हमारे पास फिर रिसोर्सेज नहीं होते कि हम इस तरफ इस्तेमाल करें कि हाउ टू curtail, how to decrease this gulf between rich and poor, between girls and boys, between rural and urban, urban to rural. ये तमाम चीजें इफेक्ट होती हैं, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, राइट? Then population grow result in significant variation in the age and sex composition of the population beside numerical increase. ऐसा ही है, फीमेल की तादाद ज्यादा हो गई है। आपको पता है पाकिस्तान में फीमेल की तादाद ज्यादा है मेल से, यू नो? मेल की ज्यादा, फीमेल की ज्यादा है।
ज्यादा है ना, ऐसा ही है। अच्छा चले, अब आप यू आर नाउ द स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आप बताएंगे फीमेल की तादाद ज्यादा है तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे ओवरऑल ग्रोथ पर। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फीमेल ज्यादा है तो आप पॉपुलेशन की प्लानिंग आप कैसे करेंगे। बाबा आप तो इस झगड़े में पड़ गए ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आपकी फीमेल ज्यादा हैं तो इसका ओवरऑल कंट्री पर सोशली इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट होगा। मैंने आपसे कल कहा था कि फीमेल वैसे ही ज्यादा है ऑलरेडी, एजुकेशन में आप देख रहे हैं इस वक्त जितने बच्चे इसमें फीमेल ज्यादा है मेल कम है, ठीक है। आप इस वक्त जो मुझसे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं इसमें फीमेल ज्यादा है ना, मेल कम है ना। नहीं, फीमेल ज्यादा है, इसमें सिस्टम की क्या गलती है। देखिए, ये जो मैंने आपको दो बातें बताई ना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और इक्वलिटीज की, जब वेन एवर योर फीमेल पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है मेल से, हम पहले इसका देखते हैं इफेक्ट सोशली इकोनॉमिकली। देखिए इकोनॉमिकली तो वो फीमेल पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं उनको जॉब्स देने की, मार्केट में उनको लाने के लिए, तो हमने उनके लिए 5% कोटा रखा हुआ है। पढ़ाई में उनका कोटा 70%, जॉब में 5% हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ मेल का पढ़ाई में कोटा कम, जॉब में कोटा 90%। क्लियर। हम, अब मेरी बात समझ रहे हो। अब आप कहें कि सर जॉब मेल को देनी है, वो घर को फीड करता है, एग्री। पढ़ाई में फीमेल को, जॉब में मेल को, फिर हमने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर जब हमने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया तो जो हमने टैक्स पेयर का पैसा पॉपुलेशन फीमेल को लगाया पढ़ाने के लिए, वो वेस्ट हो गया सारे का सारा। बिकॉज मैंने कल आपसे कहा था एमबीबीएस में 60 to 70% बच्चे बच्चियां शादी के बाद पढ़ती नहीं आगे, सॉरी वो काम नहीं करती। जिस काम के लिए इस कौम के टैक्स पेयर ने पैसा लगाया ताकि कल को हॉस्पिटल में जाके मरीजों की वो करे, ये सब तो हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गए। आर प्लानिंग बिकम जीरो। हमने एक बच्ची को क्लास प्रेप से शुरू होकर एमबीबीएस तक पढ़ाया, वो शादी करके घर बैठी। कितना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग मैनेजमेंट सारी गई सोशली, राइट। एक तरफ फीमेल की तादाद ज्यादा, अब आ जाओ, अगर फीमेल की तादाद ज्यादा है, पढ़ाना मेल ने है, पढ़ना फीमेल ने, तो अगर फीमेल की तादाद ज्यादा है, फीमेल को पढ़ाना, तो हमें फीमेल को फिर अपॉइंटमेंट कितनी करनी चाहिए। लेकिन अगर हम फीमेल को जॉब देंगे, मेल को नहीं देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, राइट। सोशली हमें कितने मसले मसाइल का सामना है। फीमेल आर हाईली एजुकेटेड, मेल आर नॉट, कंपेरेटिवली नॉट हाईली एजुकेटेड। जॉब मार्केट्स मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं। फीमेल जो पढ़ भी जाए सर्टन टाइम में वो जॉब्स करती हैं या जॉब क्विट कर जाती हैं,
जो हमने उनके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की, तो जीरो हो गई। देखो ना, इम्बैलेंस का ये नुकसान है। अब मेरी बात थोड़ा थोड़ा समझिए। अगर हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, तो फिर आपकी मोर देन 60% मेल जो है वो सड़कों पर बेरोजगार होंगे, और ये बेरोजगारी क्राइम रेट को बढ़ाएगी, सोशल इनजस्टिस को प्रमोट करेगी, देन हरासमेंट्स के केस होंगे, चोरी होगी, डकैती होगी, मारधाड़ होगी, टेररिज्म होगा, वार होगी। अब यू गॉट माय पॉइंट? यू गॉट माय पॉइंट? तो फिर इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम ना। अभी तो मैंने सिर्फ आपको जॉब के हवाले से बताया, अब तुम सोशली आ जाओ। आप सोशली आ जाएं, जो खवातीन जॉब्स करती हैं उनकी लाइफ कितनी टफ है। घर में भी वो सारा काम करेंगी, जॉब में भी सारा काम करेंगी, बच्चे भी पैदा करेंगी, बच्चों की देखभाल भी करेंगी, ऐसे ही है ना। उनके हेल्थ इश्यूज कितने हैं, उनकी लाइफ हमने कितनी तंग कर दी, सोशली ये बता रहा हूं, समझ गए? तो ये जो हमें ये जो इम्बैलेंस है, अब कुछ चीजें नेचुरल हैं, अब इन नेचुरल को हाउ टू यूज दीज नेचुरल इन आवर बेस्ट फेवर, हमने इसको अपनी बेस्ट फेवर में कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो हमारे प्लानर का काम है ना। आप समझिए, हमने क्यों बच्चियों को सिर्फ स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, बाकी हर हर प्रोफेशन में वी शुड वेलकम देम, बट अगेन देयर आर सम सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशंस। ओके, ये जो बच्चियां टीचर हैं, पढ़ाती हैं, उनसे पूछें उनकी लाइफ कितनी टफ है, और खास तौर पे जो मैरिड है, राइट? So the rate of population growth has widely implication on all sphere of human activities. आप देख लें, एक माँ, बहन, बीवी का रोल प्ले करने के साथ साथ अगर वो इनकम भी जनरेट करने में हमारा देंगी, तो उनकी लाइफ कितनी टफ होगी, राइट? सो माइग्रेशन of people determine their geographical distribution, and this too has a significant impact of need of the society. मैंने आपसे कल ब्रेन ड्रेन की बात की थी। वो वेलकम करते हैं, एशियंस का सारा टैलेंट्स यूरोप के लिए काम कर रहा है। अंग्रेज तो पढ़ता नहीं है, तो लुच्चा लफंगा है, जो पढ़ता है वो सही पढ़ता है, मेजॉरिटी तो उनकी पढ़ती नहीं है, तो उनको बड़ी आसानी से गुलाम मिल जाते हैं एशियंस कंट्री से पढ़े लिखे। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इन्होंने इकबाल पूछ रहा है कि एजुकेशन प्लानर्स क्या करेंगे। देखें, आपने एजुकेशन प्लानर्स अब क्या करेगा कि इस फीमेल को, एक तो देखे ना, चलो मैं तुमसे, एक बच्चे ने यहाँ लफ्ज लिखा जी मैन पावर, ये इस लफ्ज से इख्तलाफ नहीं है, मैन पावर क्यों है ना, मैन पावर। तो ये डोमिनेंट सोसाइटी की बात नहीं है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो पहले तो हम अपने बिलीव्स को चेंज करें ना, जो हमारे बिलीव्स हैं उनको चेंज करें पहले। ओके, हमने इन फीमेल्स की स्किल्स की यूटिलाइजेशन, और ये हमें सोशली इकोनॉमिकली तो होगी, सोशली एक्सेप्टेबल करना चाहिए सबसे पहले, कि हाउ दे कंज्यूम इन आवर जॉब मार्केट। ओके, so all these affect education development in direct manner. In fact, findings of demography are not one of the foundation on which education plan are built, and for this reason planner should have a sufficient knowledge of demography method and concepts, their meaning and limitations. Nearly all quantitative analysis and estimate of qualitative aspects of education are related to populations. ये जो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, अभी मैंने आपको देखे ना सिर्फ जॉब के हवाले से दी है। एक और बड़ा डायलेमा जो आप नजर आएगा, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शायद आप मेरे साथ करेंगे। हाईली एजुकेटेड वुमेन
are mostly fail to find a highly educated male for a family life. आप समझिए मेरी बात, ये बहुत बड़ा डायलेमा है। मैंने आपको गिलगित बल्तिस्तान की एग्जांपल दी थी। तो अब हमें यहाँ प्लानर्स को क्या करना है, हमने मेल को पढ़ाना है। मैंने आपको सर सैयद अहमद खान का बताया था कल, और उसकी बड़ी वजह ये थी, इक्वालिटीज जब हम बैलेंस खराब करेंगे तो हमारे लिए बड़ा बुरा पैदा होगा मैसेज। तो पहली प्रायोरिटी हमारी एथिक्स, मोरल, सोशली रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इफ वी कैनॉट strong these things, our efforts will bring no fruitful results. Okay, so ये जब आप प्लानर बनेंगे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लानर, फिर हम इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही जरिया है, वो एजुकेशन है। यू आर एजुकेशन प्लानर मैनेजर। मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब आप ये थोड़े से बाद आप फील करेंगे ना, आपने एक बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना। तो whenever you are going to a big task, so you should very conscious, तुम्हारा एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्विक रिस्पांस, you should know each nitty gritty if and buts। ये प्लानर्स का काम होता है। मिनटों में आप एनालिसिस करेंगे, मिनटों में एनालिसिस करोगे, अगर प्रॉपरली थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। मैं आपको हर रोज छोटी छोटी एग्जांपल दी जा रहा हूँ ना। देखो, अगर तो आप पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, तो अपनी एक फील्ड में बेहतर होंगे। लेकिन जब तुम प्लानर बनोगे तो तुम कौम को डेवलप कर रहे हो, नेशंस को डेवलप कर रहे हो, एथिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, मोरली, हर चीज के डेवलपमेंट ने आपने देखना है। ऊपर बैठ के देखना है नीचे क्या हो रहा है। आप यू गॉट माय पॉइंट। यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, ऑब्जर्वर, एनालिटिक्स, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्वर, डिसीजन मेकर। ये वो तमाम स्किल्स हैं जो एक प्लानर्स के पास होती हैं। इसीलिए प्लानर्स जो होते हैं ना, ये बाकी तमाम चीजों को मद्देनजर रख के इनकी एनालिटिकल स्किल्स बड़ी बड़े तेज होते हैं। ये चीजों को फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जब आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करने के लिए तुम्हारे पास स्किल्स और नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स का। क्योंकि आपने बहुत से माशरे को बहुत सी चीजों का जवाब देना है, राइट। सो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स इफेक्ट एंड एजुकेशन, मैंने थोड़ी सी बात कर ली, हम थोड़ा सा इसको देखते भी हैं। Studying the structure of a population means studying its composition, that is its distribution, right? According to certain predefined criteria. Education planner may be considered with distribution of the population various reasons. अच्छा, अली नाम है आपका, क्या नाम है बेटा? आपका नाम पूरा क्या है? आलिया। आलिया, ये जो आपने मुझे बात की है ना कि आप नहीं हो सकी, बेटा ये आईटी वाले से बात करो, वो आपको इसका जवाब देंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये आईटी के पास रिकॉर्डिंग जा रही है आपकी सारी। ओके,
अच्छा, ये मोहम्मद पूछ रहे हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी है, रिसोर्सेज इतने जल्दी कहाँ से आएंगे? अच्छा, अब रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, स्ट्रगल करोगे, रिसोर्सेज जनरेट, आपके पास बहुत से रिसोर्स अवेलेबल हैं, अब आपने इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, राइट? चेंज लाना, चेंज इज ऑल जो होता है ना, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, कमिटमेंट और विलिंगनेस चाहिए। चेंज ऐसे, जब तक हम सब चेंज की तरफ सोचेंगे नहीं, चेंज नहीं आएगा, राइट? फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑननेस, हम सब ऑन करें, हमारा कंट्री है, ठीक है, जब तक इज्तिमाई बिहेवियर में फर्क नहीं आएगा ना, रिसोर्सेज तो हमेशा ही कम रहेंगे, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन तो प्रॉपर कर लो, ठीक है? सो प्लानर हैज interest in its distribution by age and sex. This enable them to measure the relative size of school age population, which is the foundation and point of departure for any education policy. इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। The distribution of population by sector of economy activity, and within each of these sectors by occupation. With accurate knowledge of distribution of sector and occupation, it is impossible to estimate manpower requirement and hence to determine target for technical vocational higher education. इसका मतलब है, जब जब आपके पास डेमोग्राफिक सिचुएशन होगी और आपको ये मालूम होगा कि इकोनॉमी के किस सेक्टर में कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड चाहिए और किस टाइप की चाहिए और उसकी कौन से स्किल और नॉलेज चाहिए, किस टाइप की आप उनको एजुकेशन देंगे, तो तब आपकी इकोनॉमी ओवरऑल डेवलप करेगी, प्रमोट करेगी, ठीक है? देन द geographical distribution of the population, which affect both cost of education and choice of type, size, and location of school. Our examination of population structure will be confined to three above mentioned aspects. Geographical mean, पर किलोमीटर पॉपुलेशन आपकी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन है, राइट? एक इसका जो है इंडिकेटर है, पर स्क्वायर किलोमीटर आपकी पॉपुलेशन कितनी, यानी टोटल मुल्क का टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, आपको पता चल जाएगा आपके मुल्क का पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन कितनी है, ओके? इससे आपको पता चल सकता है कितना आपके पास स्पेस है एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, सैनिटेशन के लिए, स्कूलिंग के लिए, एंटरटेनमेंट्स के लिए। नंबर 2, कुछ आपके इलाके ओवर पॉपुलेटेड हैं, कुछ अंडर हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आबादी इतनी नहीं है, आपके पास काफी बड़ा एरिया मौजूद है, लेकिन शहरों में कराची, लाहौर जैसे शहर में बहुत ज्यादा होगी, तो आपका लोकेशन और फिर अकॉर्डिंग टू दी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन आप अपनी प्लानिंग को आगे प्लान करेंगे, राइट? जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, वहां पर आपका स्कूल का स्ट्रक्चर, स्कूल की पॉपुलेशन, स्कूल की जो टाइमिंग होगी, स्कूल का जो स्ट्रक्चर होगा, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। यानी जहां डेंसिटी पॉपुलेशन की कम है, वहां आप एक स्कूल काफी इन कैचमेंट एरिया के लिए काफी होगा, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान में या उन इलाकों में जहां आबादी कम है, वहां एक स्कूल बनाएंगे तो आसपास की काफी आबादी के लोग स्कूल में आ सकेंगे। लेकिन अगर आप किसी डेंस शहर में या कस्बे में या देहात में स्कूल बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन आपको स्कूल वहां पर उतने ही ज्यादा रखने हैं, फिर उसमें आप मेल और फीमेल्स के स्कूल की तादाद को भी डिटरमिन करेंगे। डेंसिटी से मतलब ये भी आएगा ना कि फीमेल ज्यादा है कि मेल ज्यादा है, ठीक है? तो अगर फीमेल ज्यादा है और मेल के स्कूल ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर आप स्कूल फीमेल के बनाओगे ना। यू गॉट माई पॉइंट? अच्छा अनिला, तुम्हारा फर्स्ट डे बेटा, ये तमाम बातें जो है ना, ये तुम अपने इनसे
जाओ अपने ईपीएम के जो कोऑर्डिनेटर है ना एमए के, उनको बताओ, वो बेटे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैडम ताहिरा नाम है उनका, वो आपके हमारी सीनियर है, बड़ी हेल्प करेंगी आपकी इसमें, ठीक है। एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, ये पीपीटी मैंने आपसे अर्ज की ना, ये बेटे मुझे किसी एक का लिख दो, मैं ये सारी उनको भेज दूंगा। बस ये मैं अभी सज्जाद को भेज देता हूँ, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगी, आप फिक्र ना करो, अपनी पढ़ाई पर दो, कि मैं पीपीटी सारी भेज दूंगा। ये लग जाएंगे, बाकी क्लासेस के आपके मार्क्स लग जाएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स। The simplest method of studying the population structure by age and sex is to construct an age pyramids, ठीक है। एज पैरामीटर्स नीचे आपकी एज होगी, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो आप देखते हैं इंसान की जो सर्वाइवल है ना वो एंड तक कहां जाती है, ठीक है। So the age structure of the population is very important in demographic analysis because it provides a sort of summary of demographic history of nation, and also because it governs to some extent the future growth of the population, the number of individuals each age or in each age group depend upon birth rate, the effect of mortality, the size of migratory flow at various time and the age of the migrants. ये जब आप रूरल से अर्बन की तरफ आते हैं तो ये तमाम फैक्टर्स आपको काउंट करेंगे, ठीक है, कि अर्बनाइजेशन कितनी है, माइग्रेशन रेट कितना है, ठीक है, ट्रेंड्स कितना है। तो क्योंकि आप जब प्लानिंग करेंगे तो 5 या 10 साल की प्लानिंग आज करोगे तो 5-7 साल बाद इफेक्टिव होगा ना। तो आपने पिछले ट्रेंड्स पढ़ने हैं कि आपके माइग्रेशंस के ट्रेंड्स क्या है, बर्थ रेट के ट्रेंड्स क्या है, मोर्टेलिटी के रेट क्या है, फर्टेलिटी के रेट क्या है। मोर्टेलिटी मीन डेथ एंड फर्टेलिटी मीन न्यू बर्थ्स, ओके। माइग्रेंट्स कितने आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स कितने हैं, कितने लोग आपके पॉपुलेशन में। देखें, आपने बर्थ रेट या फर्टेलिटी का तो एग्जैक्ट अंदाजा लगाया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम हुआ कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ये ड्यू टू फर्टेलिटी रेट नहीं हुई, बल्कि माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ गए, जिसको आपने जब आप प्लानिंग कर रहे थे आपने इस चीज को सीरियसली नहीं कंसिडर किया, तो पता चला जी माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट, ये एस्पेक्ट तो आपने बिल्कुल मद्देनजर रखा ही नहीं था जब आप प्लानिंग कर रहे थे। तो इसलिए ये तमाम वेरिएबल्स को, इंडिकेटर्स को माइन्यूटली आप देखेंगे पॉपुलेशन में, जब आप डेमोग्राफी की पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे फॉर प्लानिंग पर्पस। एज कंपोजिशन, the age structure of population is consequence of the trend in fertility, mortality, migration over the past period, with fertility trends having the dominant influence. We have discussed it in detail. जी आप जो अपने प्रॉब्लम्स हैं बेटे, ये आप बताओ, ये बच्चे ने इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्या मसला है सर बताएं। गवर्नमेंट चार्ज हो चेंज होने पे किस तरह कंटिन्यू रहती है प्लानिंग। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। देखिए, गवर्नमेंट चेंज होती है जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ना आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑफिशियली प्लानिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट सियासी तौर पे चेंज होती है, तो आपके प्लानिंग के कुछ इदारे काम कर रहे हैं। आप आगे इसको पढ़ेंगे, CNW है, PNW है, एक्निक है। तो जब कोई चीज इन इदारों से अप्रूव हो जाए
तो गवर्नमेंट चेंज हो भी, प्लानिंग पर उसका इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप कहते हैं ना PC1 अप्रूव हो गया, देखें इन्होंने ये मेट्रो वगैरह की कितनी मुखालफत की, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की कितनी मुखालफत की, लेकिन क्योंकि ये एक दफा एक्ट से हो गया, अप्रूव हो गया, तो आने वाली गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। अब बस समझ गए? आप मेरी बात समझ गए? कुछ इदारे हैं जो जब वहां से चीज अप्रूव हो जाए तो वो चेंज नहीं होती, इसलिए आप इस चीज पर परेशान ना हो कि गवर्नमेंट चेंज होती है, होती रहे। कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून ने आपको ये प्रोटेक्शन दी है कि जब आप एक काम कर लें तो फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, दरमियान में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो पुरुष, ये हम यहाँ थे, द एज स्ट्रक्चर पर हमने बात कर ली। द पोर्शन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन फॉर इंस्टेंस रिफ्लेक्ट द रिसेंट बर्थ रेट एज फर्दर अफेक्टेड बाय इन्फेंटेंट मोर्टेलिटी, ये हमने बात कर ली। द पोर्शन ऑफ ओल्ड पर्सन इज कम्युनिटी इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड एवर सिंस द टाइम। अच्छा देखिए, एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तेजी से, तो 60 इयर्स, देखें एज ग्रुप जो है ना आपका था 18 साल से 60 ईयर तक। ये जो 60 के बाद के लोग हैं, ये भी इन्हीं पॉपुलेशन के ऊपर, दो, एक जो 18 साल से कम की पॉपुलेशन है और एक जो 60 से ऊपर की पॉपुलेशन है, ये दोनों डिपेंड करती हैं जो आपकी रिमेनिंग पॉपुलेशन है इस पर। अब रिमेनिंग पॉपुलेशन का 52% आपका फीमेल है, इसका मतलब है आपकी पॉपुलेशन का मेजर बर्डन जो है वो एक 1/3 ऑफ पॉपुलेशन बर्दाश्त कर रहा है। यू अब इस चीज को समझ गए हो ना? देखो 60 प्लस का जो बंदा होता है वो खुद काम नहीं करता, वो अपने बच्चों पर डिपेंड करता है, ऐसे ही है। फिर जो 5 से लेके 18 या 16 साल तक जो बच्चा है वो भी अपने माँ बाप पर डिपेंड करता है। तो ये जो 18 to 60 ईयर्स के लोग हैं ना, ये बाकी तमाम पॉपुलेशन का बोझ भी बर्दाश्त करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? अब इस पॉपुलेशन में से आप हाफ फीमेल्स को निकाल दें तो छोटा सा जो आप 1/3 कह लें, जो आपका पॉपुलेशन का सेगमेंट है, ये बाकी सारी पॉपुलेशन का बोझ उठा रहा है। यू शुड कीप दिस इन माइंड। ये बात आपको सही मेरी कि नहीं? क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ children 0 to 4 year give an indication of burden of children care. The group to 5-15 indicative of investment needed for school enrollment and teaching. ये बात समझ आ गई? ठीक है, फिर अच्छा चलें, आप ये खत्म हो गई। दूसरा, 0 से 4 साल के बच्चों के लिए जब प्लानिंग करेंगे तो उनकी फीडिंग की करेंगे। इस एज में तो पढ़ते तो नहीं है ना, पढ़ेंगे तो 5 साल की एज में। अब 5 से 14 साल की एज के जो बच्चे पढ़ेंगे, हमने उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, बुक, यूनिफॉर्म, मटेरियल, कंटेंट्स, एग्जाम, एडमिशंस, टीचर्स, ये सारी प्लानिंग इसके लिए करनी है। फिर जो बच्चे इनमें से भी देखें ना, 5 to 14 ईयर्स में भी कुछ बच्चे आपके प्राइमरी में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेबर मार्केट में चले जाते हैं, चाइल्ड लेबर के नाम से, जो दुनिया में नापसंद किया जाता है, राइट। फिर आपको मैट्रिकुलेशन के बाद एक बड़ी तादाद जो होती है वो लेबर मार्केट को देती है ये एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें से कुछ लोग 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं सेमी स्किल्ड होकर, ये इंडस्ट्री को सेमी स्किल्ड वर्कर देते हैं। और जो इस फिल्टर्स में गुजर के आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं, दे बिकम स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, राइट। और अब इस हर सेगमेंट्स में आपने पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक स्टडीज करनी है एट अ स्पेसिफिक प्लेस, उनकी कंपोजिशन in the categories of male and females, then urban rurals, then migration rates, fertility mortality rates। इन तमाम चीजों को एक प्लानर प्लानिंग करने से पहले ये तमाम वो इंडिकेटर हैं जो उसको
एग्जिस्टिंग सिचुएशन के एनालिसिस करने के लिए इसको हेल्प आउट करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? ये आप बात समझ गए? जो इतनी बड़ी बहस हमने की है, ये डेमोग्राफी का एक पोर्शन है जिस पर हमने डिस्कशन की है, ओनली वन।